भगवान वीरो मंगलम मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सत्य धर्मोस्तु मंगलम विश्व धर्मोस्तु मंगलम। जाप करो श्रद्धा से, ओ जाप करो श्रद्धा से, ओ मंत्र नवकार प्यारा है। As I don't have rhythm and music, your big round of applause will be a boost for me. So can I request to give a big hand for yourself and to this mantra, to honor this mantra. जाप करो श्रद्धा से, ओ जाप करो श्रद्धा से, मंत्र नवकार प्यारा है। स्वार्थ भरे इस जग में, ओ स्वार्थ भरे इस जग में, यही सच्चा सहारा है। जाप करो श्रद्धा से, ओ दुनिया में मंत्र बड़े भक्त जन जपते हैं। हो दुनिया में मंत्र बड़े भक्त जन जपते हैं। ओ यह महामंत्र बड़ा, ओ यह महामंत्र बड़ा। कौन सा मंत्र है? नमो अरिहंताणम। प्रीति जी also know as she is also Jain. नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ओझायाणम, नमो ये सब साहुणम। ऐसो पंचनमोक्कारो सर्व पाप नाशनो मंगलाणं च सर्वे सिंह परमं हवो मंगल। जाप करो श्रद्धा से, हो मंत्र नवकार प्यारा है। स्वार्थ भरे इस जग में, हो यही सच्चा सहारा है। नवकार मंत्र है न्यारा, जिसने दुनिया को तारा। नवकार मंत्र है प्यारा, जिसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवझायाणम, नमो सर्वसाहुणम, नमो सर्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वे सिंह परमं हवे मंगलम। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने इसको अच्छे ध्यान से सुना। साउंड दादा थोड़ा सा रिवर्ब बेस और बढ़ाइए। ये आदरणीय देवेंद्र जी ने जो ये रचना की है पूरे संसार को ब्रदरहुड में लाने के लिए, और आपके लंदन से जो मेहमान आए हैं उनके स्वागत में 4 लाइनें कह के और आपके बारे में कह के मैं विराम लूंगा, फाइनली विराम लूंगा। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा। सब लोग आए इनके स्वागत के लिए। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। व्यक्ति साधारण, व्यक्तित्व महान है।
देवेंद्र भाई जी गुण रत्नों की खान है। सर्वधर्म स्वभाव, आज भारत में सर्वधर्म स्वभाव की मशाल जलाते विश्व में ये महान है। भारत की ये नई पहचान है, भारत की ये नई पहचान है। के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। Thank you, Revaji. It was really a spiritual start, and it showers blessings on all of us. So thank you, Raviji. So again, I would like to welcome you all, and a very good evening and warm welcome to all our esteemed and dignified guests. We all are overwhelmed and honored to have such illuminating personalities all under one roof today. So I would welcome our dignified guest on the stage. We would like the guest from who has flown overseas, especially for the event, sir. We thank you so much, and we would like to have you on the stage, Mr. Seaman Owens. Kindly, sir, honor us. He is the Chief Superintendent Metropolitan Deputy Lieutenant General in the Greater London. Okay, thank you, sir. Sir, kindly have a seat. Then we have Ajay Maruji. Sir, we would like to have you on the stage. He is the ex-councillor Harrow, ex-mayor from Harrow, London. Thank you, sir. We would like to have Jignesh Ji Hirani on the stage. Yeah, we have all, like, you know, we stars today. I said we have an illuminating evening, so like most of the people are stars today. Then we have K.C. Jain Ji. Then we have respected Mufti Manzoor Zai Ji. Sir, we would like to have you on the stage. And I would like to firstly welcome Guruji, Sri Guruji Devendra Bhai Ji, the one because of him who all are here. So kindly Guruji, please, it is like, you know, the one thread who all have drawn all the beads together. I request Sri Rajji Purohit. Sir, kindly honor the stage. And then the one who everybody knows, Sri Javed Ji Jafri. We not need to introduce you, sir. You are so much like, you know, in eyes of everybody, and thank you for being here. Acha, I invite Tarun Ji Kala. Kindly grace us on the stage. So when I say welcome or thank you, all such words would really be very short to value the commitment and contribution of all the guests who are present today on a working day. So I really thank you once again, all of you. So today's event, India-UK Cultural Symposium, is a Herculean effort in itself. We live in a fast-paced DG and techie world. Technological development is at its boom. I may not be wrong if I say the cultural development has taken backseat. So the vision and mission of highlighting and giving prime face to enhance, elevate and empower cultural values and development of two great nations will be like a power boost and power backup for smooth and cultural progressive bonds benefiting the present and next generation of both the countries. The intellectual mind of young revered Guru Swami Sri Devendra Bhai Ji knew much more could be done to build upon the existing cultural connections. So the idea of getting this bunch of wise people on a cool and pleasant evening by the seaside was fulfilled in the form of event of India Cultural Symposium. So thank you Guruji for such a vision of getting so many wise people on one platform. So now, like, I would request Mr. K.C. Jain to kindly, sir, have a welcome note. Okay, so like, you know, we would start anything auspicious in our country, start with lighting of the lamp, sir. We have the tradition of having lighting of the lamp. So I request the very respected Leela Ji Gajra and Ramesh Ji Gajra to please welcome on the stage for lighting on the lamp. Kindly, ma'am, please, because the lady we know, a very humble lady,
helping by heart, a philanthropist, business person, no ma'am. You know, we need to have completion because without a lady, a man can't be complete. So thank you so much. And all the people on the stage, kindly accompany. Thank you, Leela ji. हाँ. हाँ. As the lamp is lit here, we all can also wish, like, you know, the best wishes, the good wishes, and what all wishes we have to be fruitful by the lighting of the lamp. For love, oneness in the world, peace to be established throughout, around, that is the vision of the revered Guru. Thank you, Leela ji, and thank you all the dignitaries. It's like, you know, very auspicious to get it done from so many good-hearted and noble and blessed people. Thank you so much. So today we have here with us Mr. K.C. Jain. He is the president of Bharat Jain Mahamandal. So, like, you know, he is a man of wisdom. So, sir, would I like to have some words of wisdom for our crowd for a welcome speech? Thank you. Honorable guests on the dais, ladies and gentlemen, it is a great initiative taken by Devendra Bhaiya ji to have such a program for interactions between two countries. We will get fully benefited with the views by the guests who have come up from abroad and our guest from India. He has so many visions in his mind, and we would be able to know their visions and programs for exchange of cultural things in two countries. I welcome all of you who have come from all over Bombay to attend this program. Thank you. Thank you, sir. Man of few words, but a man of action, okay? So now I request everyone to, like, you know, we will be having a book launch and then we will be felicitating the guests, right, Guruji? So I request all the people on the guests, this is a book, like, you know, see, there are like things, हम जो भी अच्छी चीजें अच्छे लोगों से क्यों कराते हैं? क्योंकि उनके जो वाइब्स होते हैं, उनकी पॉजिटिविटी होती है, उनके विशेस होते हैं, वो उसके साथ जाते हैं. So this is a very, like, you know, auspicious book. So, like, you know, I know the thing, the commitment, you all are present here today. So the thing is, like, you know, we will be pleased to have this book launch from you all. So kindly, Guruji, book देंगे सबको. In the world of Facebook and WhatsApp, still the books are into existence, and this is the proof, like, you know, because now you, most ofly you have all the readings on internet, on mobiles. But I believe the vibes you get from the books, you do not get from anywhere else. अभी गेस्ट गुरुजी गेस्ट का फेलिसिटेशन
स्पीच करेंगे स्पीच करेंगे as we all know, we have so many of guests, okay? So जब हमारे घर पे कोई मेहमान आएंगे तो उनकी खातिरदारी तो होगी. तो like you know, as our tradition says, so to felicitate our guests, we have some special mementos and gifts. So we will be felicitating our guest on the stage first. So to start with, we have the guest from UK. We have Mr. Simon Owens to be felicitated by Mr. Ramesh Gajra and Leelaji Gajra. Kindly get me the memento and shawl, please. Yeah. It is a form of honor, sir. It's like, you know, we honor. Your presence is honored, and this would be like, you know, something in your office or in your drawing room as a gift from India. Then we have felicitation of Ajay Ji Maru. May I request Hansa More Ji to kindly do these honors? Okay, we have you, sir. Thank you. And Rakesh Jain Ji. Ajay ji, I hope you are from the Indian origin, so you know the value, like, you know, it is the honor, and like, you know, this is our memory that will stay with you all lifetime. Yeah. So happy to have you here. Now we have the felicitation of Rajji Purohit. He is very popular face, so it's like, you know, he is the former cabinet minister. I request one of the favorite couples sitting in the audience, Mahendra Ji Turakhia and Priya Ji Turakhia, and okay. Because I know the value of people. There are people in couples, like, you know, who have dedicated themselves fully, like the Gajra group, like the Turakhia groups, who have dedicated fully for social service. Like कहीं भी हो, कहीं भी नाम में कोई भी function हो, इनका नाम नहीं हो, ऐसा नहीं होता. Thank you, Purohit ji. Like, you know, we have seen, मतलब this some people are very popular. मतलब अगर हम Facebook पर नहीं देखेंगे, उनको आप TV करिए, आप उनको देख सकते हैं. So some people are very popular कि हम हर एक टीवी पर उनको देख सकते हैं. हाँ वो दे दीजिए, एक दिया ना, हाँ वो भी दे दीजिए. Still one more, sir. पुरोहित जी, गुरु जी ने ऐसे इंतजामात किए हैं ना कि फोटो भी अच्छे आए. मतलब जब कोई मोमेंटो लेना तो इतना सब कलरफुल हो कि फोटो भी अच्छे आए. So now I can say we have, like, you know, the felicitation will be of our own man, Javed Ji Jafri, an actor, a writer, and, like, you know, a versatile man, like, you know. So we are happy to have you here, like, you know, man, like, you know, it's so much of spiritual thing happening. Guruji, that is so very famous, like it is very popular. I invite Satish Ji Shurana. अच्छा, अजीत जी एंड मनीष जी. या
Today there is a very thin line between, like, off the dais and on the dais. The number of celebrities on the dais is equal to the celebrities off the dais. So, like, we applaud everyone equally. Then we have the honor of having Mufti Manzoor Jai ji. He is the chief of Mufti Maharashtra. So, sir, we would like to felicitate you, and we are very happy to get you here, sir. Ajit ji, Manish. Okay, fine. Kindly Ajit ji and Manish ji. Inka. When we see the amalgamation of, two different sects on one stage, it's real proud moment for everybody. And true demonstration of oneness in our country. Now we would like to felicitate K.C. Jain ji. Whom do we call K.C. Jain ji? Huh? Do we have Jajodia ji around? Chandrakant ji, Jajodia? Oh, sir, you are there. Thank you. We would like to have you, we would like to have you here for felicitation of Sri K.C. Jain. इसके बाद देना अच्छा तो अरुण जी सर you also welcome and अरुण जी अरुण सिंह जी yeah thank you sir. जिग्नेश हिरानी हाँ now we would like to felicitate Jignesh ji Hirani. I have been knowing him since for a while, and he's a very humble gentleman, and helping in each many ways. And the best part I know about you is he organizes Falguni Pathak so well. So if anybody needs passes, we need to contact Jignesh ji Hirani. But along with that, he is into many of the social services, and he tops many of the charts in many of the organizations, and a very famous businessman. So I would like him to felicitate it by Vikas ji Chopra. Prakash ji, okay fine. Prakash ji Chopra. Madan Muthali. And Madan ji Muthalia ji. See, there were names. See what is happening, that these names, I hope it was last moment commitment. So we are happy to see you here. So it is the privilege. But the names were not in the list. Okay, fine. Yeah. Okay. Please don't mind, I don't know you personally. Sure. Actually, I don't know. See, every people is famous like me. रमेश जी बोरा अच्छा और प्रशांत जवेरी ओके पहले तरुण भैया का नाम हाँ आप रुकिए यहाँ पर, मुझे नाम नहीं आता क्योंकि नाम लिस्ट में है तो कौन यहाँ है उनके साथ. So now we have the felicitation of very respected Tarunji Jain from Prashantji Javeri. और Prashant Javeri और रमेश जी बोरा. अच्छा and Ramesh ji Vora. घनश्याम जी
यहाँ थोड़े यहाँ चलिए तो फोटो पिक्स आएंगे. घनश्याम जी मोदी स्वागत करेंगे गणपत जी कोठारी और वैभव सोबतकर. Okay, so now we have felicitation of Ghanshyam ji Modi by Ganpat ji Kothari, वैभव सोबतकर. Vaibhav ji Sovitkar. Kindly be on the stage, gentlemen. Ganpat ji Kothari. अच्छा गए. Okay. वैभव जी एंड राहुल कासलीवाल. अच्छा राहुल काचलीवाला. फेलिसिटेशन है जो चंद्रकांत जी जजोड़िया है, अरुण इनका अनिल- करना है कि नहीं पूछो ना, इन्हें कर दिया ना. आप पूछिए इनका करना है. स्टेज पे नीचे. Thank you so much. आचार्य राकेश जी का सम्मान होगा, वो सामने बैठे हैं. अच्छा, भैया जी करेंगे. okay. We have very respected Acharya Rakesh ji with us. So we request kindly sir, please be on the stage. We are happy to have your blessings too. So he will be felicitated by Swami Shri Revered Devendra Bhai ji. I know it is a very pleasant evening and you are all by the seaside, but it is so pleasant that you all like, you know, सब लोग ऐसे बैठे. अब किसी एक पर तालियां नहीं बजाई, पर सबके लिए एक साथ तो तालियां हो सकती है. Kindly. Thank you so much. This is like, you know, just a respect we show to our guest. So like to proceed you, like, you know, the person who has brought us all together. So as we all know, the one who has brought us all together is Swami Shri Devendra Bhai ji. A young spiritual mentor, revered guru, Swami Shri Devendra Bhai ji is a social reformer, versatile thinker, writer, a poet for last 18 years. He has been continuously making efforts for establishing communal harmony and non-violence, peace and mutual cooperation in society. Guruji is master in the field of peace education, which is a unique blend of age-old meditation, yoga and scientific research. He has traveled extensively in India and overseas and gained international fame. He has been a keynote speaker in many national and international conferences for global unity, Jainism and vegetarianism. Guruji has shared the stage and being appreciated for his contribution by His Holiness Dalai Lama, Acharya Shri Vidyasagar Maharaj Sahib, Swami Ramdev ji, Acharya Lokesh ji, and many other political dignitaries starting from the Honorable Prime Minister and the President of India. Guruji has received many awards, which includes the prestigious Bharat Gaurav Award. It is an international award for Indians from British Parliament, London, and International Siddha Sen Shakti Peeth. So I am pleased to invite Guruji on the dais. Guruji, kindly take over. So he will be sharing more about this evening. Thank you. ओम नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याण नमो उच्चारण नमो शब्दसाउड़म। मंच पर उपस्थित
हमारे सात समुंदर पार से जिनको कहते हैं, आज इस भारत की धरा पर वो पधारे हैं। महारानी के, क्वीन के प्रतिनिधि और हेरो लंदन के पुलिस कमांडेंट मिस्टर साइमन ओवेंसी और अजय जी मारू, काउंसलर एवं पूर्व मेयर, हमारे बीच में जिग्नेश जी हिरानी जी, आदरणीय केसी जैन जी और महाराष्ट्र सरकार के सबसे चहेते और लाडले मुंबई के हमारे राजकीय पुरोहित जी और हमारे फिल्म जगत से जो यहाँ पर पधारे हैं श्री जावेद जाफरी जी, और इतने कम समय में इतने जल्द से आने वाले और अपनी बात को हमेशा लोगों तक अच्छी पहुंचाने वाले हमारे मुक्ति मंजू जय जी और जैन समाज के सुप्रसिद्ध श्री तरुण जी काला जी, श्री घनश्याम मोदी जी और मेरे बीच में आप सब बैठे प्रिय महानुभाव। इस आयोजन का सिर्फ एक थोड़ा सा हमने ये चाहा है कि आज जो दिख रहा है एक छोटा सा एक कार्यक्रम में बोलेंगे, एक छोटा सा हमने एक समन्वय का एक थोड़ा सा माहौल बनाने का प्रयास किया है। ये जो प्रयास हमारी एक भारत की धरती से एक इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्तिपीठ है जो लंदन में स्थित है, वो हमेशा भारतीयों के लिए और भारतवासियों के लिए हमेशा एक वो काम करती है कि जो वहाँ पर जाता है उनके धार्मिक आयोजन कराना, उनकी वहाँ पर अच्छी तरह से देखरेख करना और अनेक तरह के वहाँ कार्य करती है। और वो हमेशा जब भी वहाँ से किसी को प्रतिनिधि को भेजते हैं तो एक बार जरूर सूचित करते हैं कि आप वहाँ पर आ रहे हैं, इनका वेलकम कीजिए और इनका स्वागत करने का एक हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो आए, हमारे भारत की परंपरा रही है कि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। उसी परंपरा का ये निर्वहन आज किया है। और हमारे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्तिपीठ के जो वहाँ के जो मुंबई में एक प्रतिनिधि हैं जो आचार्य राकेश जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। और इस कार्यक्रम को लेकर एक बहुत कम समय में ये कार्यक्रम तैयार हुआ है और एक काफ़ी समय से लोगों से बातचीत करने का समय नहीं था, लेकिन ये सब चल रहा है और ये सब पधारे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमने कार्यक्रम करते हैं, अनेकों कार्यक्रम देखते हैं और सुनते भी हैं, पर ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम रखा है थोड़ा सा कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति का एक अपना महत्व है और उस भारतीय संस्कृति को हम दूर दराज तक कैसे लोगों तक पहुंचाएं और लोगों तक उनकी जानकारी दें। इसीलिए मिस्टर साइमन ओवेंस, जब ये दूसरी बार इनसे मेरी मुलाकात हुई है और एक बार जब आए थे तब भी मुलाकात हुई थी, और यहाँ पर जब आए, जब भी आते हैं एक कुछ ना कुछ अच्छा संदेश लेकर आते हैं, कुछ अच्छाई लेकर यहाँ से जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनको अभी तक लंदन का सबसे फेमस इनको माना जाता है और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं एक सब लोगों के लिए इस कार्य के माध्यम से आप सबको एक बधाई देना चाहता हूं और एक विश्वास करना चाहता हूं कि एक जो छोटा सा एक कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके बीच में एक समन्वय का हो। और मैं अपनी बात को आगे रखूंगा, हमारे टाइम की थोड़ी सीमाएं हैं और मैं चाहूँगा कि आगे भी थोड़ा सुने, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं। जय जगन्नाथ। So it was like, pleasure, and it was very enlightening to hear you, Guruji. Now I would request our guest from overseas, Simon ji. Yeah, Simon Owens would, unka speech hai na? Yeah. We would like some words of wisdom from you, sir.
Good evening, everybody. J.C. Krishna. I'm extremely pleased and honoured to be asked along to this symposium, which has landed at a time when I've come over to celebrate a friend's wedding as well. So I'm managing to do both things. This is my third visit to India, my first time in Mumbai. But I come and work from a part in London which is famed for its diversity. London is a very diverse city anyway, but about 10 years ago I began working in the London Borough of Harrow, which is in the north of London. And this is the most racially diverse place in the whole of the United Kingdom. Some 80% of the population of Harrow were not born in the United Kingdom. We have 28 different religions that are practiced openly in our borough. And when I first went there as a police commander, I realized very early on that the way for me to work with the community and get the community working together in Harrow was going to be through its different religious locations. London is a place that you know that has been hit by the most atrocious terrorism over the last few years. Some of this done supposedly in the name of religion. I know that isn't the case. And what I found in Harrow was at the times that were the very worst times, the different communities, the different religions in Harrow came together and stood together. And the message I have to deliver most of all is that those different religions working together, that bringing together of diversity, is what has made Harrow work and made London the calm place that it is. We realise there are people that are going to come and try to come between us, to put diversity between us and to use that against us in the hope of riling up the different communities and opposing them against one another. But what we find in practice is the very, very opposite. And although the police have a great job to do in bringing calm, in maintaining order, in maintaining the Queen's peace, we know we cannot do that without the community. And I've been struck time and time over in Harrow at times of bad things happening. The different religions will come together. The different religious leaders will stand together and preach a message of peace and harmony. And the message of this symposium is around cultural harmony. And I have found the most harmony in bringing together the different cultures in Harrow, whether Islam, Hindu, Christianity, Judaism, Jainism, Zoroastrianism, just to name a few. When they come together, when we share time, when we share each other's religious festivals together, it's a time of great happiness and understanding. We also spend a great deal of time in each other's religious establishments. So I'm in the lucky position where I regularly attend mosques and temples and synagogues and churches and assembly halls, etc. So I have begun to understand how the different religions work. Each of the religions understand how each other's religions work. And the thing that we have found most extraordinary is the amount we have in likeness. The amount we have in terms of shared heritage and shared ideals. I welcome this symposium that is a first step towards bringing together those different cultures in a very tangible way. Earlier on upstairs, I as a Christian was sat between a high-ranking Muslim on one side, a high-ranking Hindu on the other. And we sat there as three friends and three colleagues, all saying exactly the same thing about peace and harmony. And if there's one thing that all our religions share properly, is that message of peace and that striving for peace and that purpose of working together and living in harmony with each other, with our different religions, in our different locations, maybe in our different countries as well, but all marching together to the same end, which is to promote peace, bring peace, and live in peace. Thank you very much.
Thank you so much. We had a very great message of having unity and diversity in one's country, but now the scenario is it has crossed the borders. So we have this unity and diversity across the borders in the whole globe. So that is what we are taking it ahead today. And now I would request and call upon Ajay Ji Maru or Javed Ji. Ajay Ji Maru, sir, some words of wisdom from you too. It's like, we have what, like, we are eager to listen to you all on the stage today. Namaskar, Jai Jirendra, a very good evening, Assalamu alaikum, and greetings from London and specifically from Harrow. Harrow is the most diverse borough in the UK, and I'm proud to be one of the elected members to represent Harrow. I've been the mayor of Harrow the year 14-15. We've just had elections with the general elections where we've been pretty much involved with all the elected members now. And I know there was been a bit of differences between the Indian, diaspora and the others. But it gives me a great pleasure this evening to be one of the represented members where we say, as mentioned, that we are all here together sharing the same stage and platform, just singing one simple song. United we stand, otherwise we fall. So it gives me a great pleasure to be here this evening. I want to thank Devendra Bhaiji. I want to thank Guruji from Harrow, from International Siddh Ashram, who has been very instrumental on having us here this evening. Sadly, he's not been here this evening with us, but it's thank you to him that we are all here present, and missing him in bringing this and putting this event together alongside with all the sponsors. I also want to thank him for bringing this sort of peaceful message into not just Harrow but throughout the UK, in bringing all the saints and all the spiritual leaders and all the respected dignitaries in terms of bringing people together. So thank you for having us here this evening alongside with Simon, and I really appreciate all your hospitality that we've got. Thank you, and God bless you all. We have stored and recorded your message, sir, so it would be like, remembered, and it would be like, taken ahead. Thank you so much. So now I request, the person we have only seen speak on TV, speak for us today. So Javed Ji Jafri. So I would request you to, it's pleasure listening to you. Javed Ji Jafri. Gracious host Devendra Bhaiji, honoured guest from the UK, Mr. Simon, Mr. Ajay, Sri Raj Purohit, friends on the stage and all friends from media. Adab, Namaskar, and Jai Hind. Like Guruji mentioned, I speak in English a bit because our gracious guests are here, so we need to. So like they said, that India has this very foundational elements which we have grown up and which have come to us through the Veds, which are Atiti Deva Bhava, there is Vasudhaiva Kutumbakam, there is Sarva Dharma Samabhava. Now these are values which me as a child in school, I was taught these values, that these are intrinsic as part of our culture, as part of the land we grow up in. And I think India is one of the most fascinating countries in the world. The kind of diversity you find in this country, I don't think you can find this anywhere. The language, the cultures, the religion, the music, the food, and yet it has managed to stay together in one whole. And I think when we got our independence, this message which was brought to us
by Mahatma Gandhi, by Sardar Patel, by Nehru ji, by Maulana Kalam Azad, all these guys, and of course the writer of the Constitution, Ambedkar Sahab. I think it's one of the most fascinating constitutions, which brings people together and gives you the right and the honor of living together in peace and harmony and having. So I think this platform which is here today, sometimes we tend to forget. Like they mentioned, there's a lot of unrest happening in the country. England, UK has certain problems which they've been facing, but the way they have tackled it is admirable. And I think we are also going through that process of tackling our problems. And Iqbal Sahab, more than 70 years ago, he said something so beautiful, कि मजहब नहीं सिखाता आपस पे बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. तो ये और I'm sorry, I won't, I'll translate it for you. He said that religion doesn't teach you to have animosity between each other. We are from this land called Hind, and the land Hindustan is our land. So that makes up all this. So, and he underlined mazhab nahi sikhata, which means religion. He underlined religion because that is the thing which everybody uses to pull people apart and to instill hate in people's hearts and minds. That is the core thing in the world today, is people are using religion, whichever religion, whether you call it Islam, Hinduism, and they use it and they manipulate people, That's why I think the communists said something very interesting long back, that religion is the opium of the masses, that you can actually, they don't know what hit them, and they are so much in a stupor that they don't realize how they are being manipulated. Another very, very nice, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, बिकॉज ये चीज़ें याद दिलाना बार बार ज़रूरी होती हैं, और ये जो मंच यहाँ पे उपस्थित हुआ है और देवेंद्र भाई जी ने बहुत प्यार से और खूबसूरती से कोशिश की है, और ये कोशिशें उजागर रहनी चाहिए. दे शुड बी हाईलाइटेड बिकॉज लाइक आई सेड, वी ऑलवेज टेंड टू हाईलाइट the negative aspects, the wars, the strikes, people getting killed, etc. We don't highlight the efforts of peace, the people coming together, the love. I think these things should be highlighted also, and this is a small effort, but it's a big effort in a way. And so एक और बड़ा प्यारा सा शेर है कि चमन में इख्तिलात ए रंग बू से बात बनती है. चमन is the garden. Ikhtilat from the diversity of smell and of colors. So chaman mein ikhtilat o rang o boo se baat banti hai, tum hi tum ho to kya tum ho, hum hi hum hai to kya hum hai. So ye, I'll translate it for you. Okay. I see the garden is made up of various smells and colors. If it's just you who are you, then what are you? And if it's just who am I, then what am I? So it's a combination of the colors and the smells which make this garden, and this beautiful garden called India, and now the UK also, which has become such a multicultural, multi-religious nation, and trying to keep people together in a very wonderful, beautiful way. And my salutes to the UK for managing yourself so beautifully, and whatever happens with Brexit, that's not my concern, but it's, I think, it's a small little joke which is a little funny. I liked it. Somebody said, why does Britain like tea so much? I said, because tea leaves. So, yeah, okay. So that you'll probably get that. So yeah, so this is very important, and coming together, and I think Mr. Simon and Mr. Ajay coming here together. I've been to Harrow. I've got friends in Harrow. It's a beautiful borough. And really, really the ethnicity, the multicultural, the multi-religious, I think is beautiful. And India, similarly, is a wonderful land. बहुत ही खूबसूरत प्यारी जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे धर्म हैं. बिकॉज सबका रास्ता तो एक जगह जाने. हमको ये देखना है कि हमारे में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं. हम डिफरेंसेस देखने लगते हैं. अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे तो इतनी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, तो उससे जो भाईचारा बढ़ता है उसको याद रखना है हमको. एंड मेरी यही दुआ है और ऊपर वाले से कि हम इसी तरह जो रहा है हमारे इस मुल्क का एक ट्रेडिशन,
कि जो प्यार और मोहब्बत से हम रहे हैं, मेरी ये दुआ है और प्रार्थना है और देवेंद्र भाई साहब की जो कोशिश है कि ऐसी कोशिश बढ़े और दिलों को जोड़ने की बात की जाए, दिलों को तोड़ने की बात ना की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। We have been listening to all the speakers. Maybe the person are indifferent, but the words and the thoughts we get are all common, because we have a common message for, like, you know, maybe the people or the masses or the nations all over. So, like, you know, it's only that, like, the identity and the mass and the body different, but the message goes the same. So that is very appreciated. And now we would like to speak, like, you know, Mufti ji. Who will be speaking? Acha. Acha. We also have a very good speaker with us, Mr. I forgot your name. Mufti Manhur Zaiji. Sorry, sir, I did not get your name so clearly. Maulana ji. Okay, that would be good if I say you Maulana ji. Thank you, sir. आज की शाम देवेंद्र भाई ने सारे फूलों को एक जगह जमा कर लिया है। ये वो फूल हैं, ये जहां भी रहते हैं अपने आप में अपनी खुशबू बिखेर देते हैं। फिल्म जगत के लोग दूर से या नज़दीक से हर एक के दिलों में बसते हैं, लेकिन जावेद भाई हम सब के आइडियल हुआ करते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। मैं चाहूँगा कि मैं चंद पल कुछ ऐसे पैगाम दूं जिस पैगाम के साथ हम पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, और हमारी सबसे बड़ी शनाख्त यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम उस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम इस मुल्क के लिए कभी जान देते भी हैं और कभी जान लेते भी हैं। मैं अजय भाई की तरफ इशारा करके यह कहना चाहूंगा, ये एक्स मेयर रह चुके हैं लंदन में, हैरो में। तू जहां भी रहे, तू जहां भी रहे, और मैं सबसे कहना चाहूंगा, तू जहां भी रहे पर तेरी जबान और तेरे दिल में हिंदुस्तान रहे। तू जहां भी रहे तेरे दिल में और तेरी जबान पे हिंदुस्तान रहे। और आज इस बात को हम लोगों ने इस सूरत में साबित कर दिया है कि बड़े दूर से आया हुआ मेहमान जो हम सब के बीच है, हम इस्तकबाल कैसे करते हैं और हमारी मेहमान नवाजी क्या होती है, उस मेहमान नवाजी को ये भी जानें और अपने मुल्क में जाकर के सबको बताएं कि हिंदुस्तान के लोगों की मोहब्बतें, उनके दिलों में जो शमा जलती है वो किस तरीके से जलती है। और हमारा ये पैगाम है, यही है इबादत, यही दीनो ईमा, यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। कि अगर हम इंसान एक दूसरे के काम नहीं आ सकें तो फिर किसी काम के हम नहीं हैं। आज पूरी दुनिया को एक अमन की जरूरत है, पीस की जरूरत है, प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। उस मोहब्बत का पैगाम देवेंद्र भाई अपने प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, और हम इनके माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो। राजपुरोहित जी, दिलों में अगर है हुब्बे वतन तो एक रहो, निखारना है ये चमन अगर तो एक रहो। तुम जहां भी रहो अपने दिल पे और अपने जबान पे हिंदुस्तान को रखो। इन जुमलों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना जी की बुलंद आवाज के लिए एक बार तालियां हो जाए। सर नाउ गुरुजी और भी जिग्नेश जी हिरानी बोलो स्पीक। अच्छा, नाउ वी हैव लाइक यू नो द मैन जिनको सुनना आप सब पसंद करोगे और जिन्होंने मैंने तो आपको कई बार सुना है टीवी पर। सो वी हैव राज के पुरोहित जी। अच्छा, उनको जाना है, ओके। वी हैव राज जी, ठीक है, हम आपको और वापस पर और ज्यादा सुनेंगे फिर। There are some guests leaving about, so we would like, you know, we are taking the privilege to felicitate them first. So now I request Ramesh ji Gajra to be on the stage. He would be felicitated by Simon ji Owens and Javed ji Jaffrey.
Ramesh Ji Gajra is builder by profession, but his professional speaks more than what his actions are. He is more into philanthropy, social service, and more into services of all the blessed souls and Pandits and Maharajas and all. Thank you. They deserve a clap, guys. हम तालियां क्यों बजाते क्यों? आज अगर किसी के लिए ताली बजाए ना, कल हमारी बारी है गिफ्ट लेने की. So let me to clap. Thank you. हाँ. सब he needs a click. He needs a pick. Javed. Yes, come please. आप आइए सर. अच्छा. I request Satish Ji Surana. Yeah. No, the people coming here are institution in itself. Like a single man, but an institution in itself. So, thank you Surana Ji for being here. Thank you, sir. Thank you. It's I would request Chandrakant Ji Jajodia to be on the stage. May I request Ajay Ji Maru and Raj Ji Purohit to felicitate him, please? Yeah, thank you. और कोई? हाँ, इनका फिर और कौन है अभी? बस हाँ, इनका तो हो गया ना, चंद्रकांत जी अभी. अभी कोई है और है कोई? याद आएंगे तो बता. अच्छा. अच्छा. हाँ, राज जी अभी माइक, राज जी, राज के पुरोहित जी अभी माइक आपको बुला रहा है. अपने पास तरह तरह के भाषण हैं. 1 घंटे वाला, 2 घंटे वाला. कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजर बोलते थे कि खाना बोरीवली से आ रहा है और टाइम लगेगा. राजपुरोहित जी 1.5 घंटे वाला बोलो, तो अपन 1.5 घंटे वाला बोलते हैं. और कभी कभी बोले कि ट्रेन फ्लाइट जा रहा है चीफ गेस्ट की, 15 मिनट में पटा दो, तो अपन 10 मिनट वाला बोलते हैं. तो अभी आपको कौन सा सुनना है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, बाहर खाने में कुछ लगा ही नहीं है. वो बोले कि आज जो उनका कुक है ना वो स्ट्राइक पर है. तो सब आपको 24 हो गया, आज खत्म. घंटे वाला. इनका लंदन का फ्लाइट है मारू साहब का. उपस्थित. ओ भाई साहब बैठ जाइए. नहीं, प्लीज सिट डाउन. हाँ, आप बैठे ना. हाँ, नहीं जाइए मत भाई साहब, सुन के जाइए, याद रहेगा. सपने अच्छे अच्छे आएंगे, ऐसी बात मत करो. हाँ, मेरा भाषण छोड़ के गए ना, रात भर उनको नींद नहीं आई. हाँ, भूत प्लीज सब आते हैं रात को, अगर मेरे नहीं सुने तो.
हाँ, छुड़ाने वाला ही था। देखो हमारे जो स्टेज पर गेस्ट है, मोस्ट पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उनके कमांडेंट साइमन साहब, रेस्पेक्टेड साइमन सर। और दूसरा जो लंदन में सबसे खूबसूरत जगह है, मुदलिया जी नहीं गए तो जरूर जाना और अकेले जाना, यानी लोग फोटो खींचेंगे। जो सबसे सुंदर जगह है लंदन में, एम आई एग्री मिस्टर मारू ब्रेड इज करेक्ट? हाँ, मैं चुपचाप जाता हूं वहां, अभी आपको मिलूंगा और आपके खर्चे से जाऊंगा। मैं कहीं भी जाता हूं पैसा खर्च नहीं करता, हम नेता लोग पैसा खर्च नहीं करते सर। हाँ, आश्रम है ना, हाँ ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का एजुकेशन कहां हुआ? हैरो में। एडवर्ड किंग 8th, am I right? You know, I know history better. Simon sir, King Edward 8th, that palace was built on Harrow. So इतनी सुंदर जगह के हमारे मेयर, ये एक्स मेयर क्या होता है? एक बार मेयर हो गया वो जिंदगी भर मेयर। अभी क्या मैं अपने मिनिस्टर से कम लगता हूं क्या? एक बार हो गया तो हो गया, जिंदगी भर मरते तो कौन मरा बोले मिनिस्टर मरा, कौन आया बोले मिनिस्टर आया। क्या ये एक्स लगा रखा है? ऑनरेबल मेयर ऑफ द हैरो, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलियारी आपकी आगे। हाँ, कि आपके कारण हमारे दर्शन हुए। एम्बेसडर ऑफ पीस, शांति दूत। और मैं आज इस मंच से भविष्यवाणी करता हूं, एक बार विवेकानंद जी ने शिकागो में भविष्यवाणी की थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि वो समय दूर नहीं, कि हमारे अपने गुरु एक छोटी सी उम्र में एक युवा संत, एक योग पुरुष, एक योगाचार्य, एक धर्माचार्य, जिसके शरीर के एक एक कण में शांति का संदेश बसता हो, इतनी कम उम्र में भारत में ही डंका नहीं बजाया उन्होंने, पूरे विश्व में डंका बजाया जाने जम का। आज हम सबको इतने सुंदर सभागृह, हम बेस्ट हॉल ऑफ द मुंबई सिटी। साइमन सर, this is the one of the best place of city of Mumbai. You have not called any place in the corner of the Mumbai. You have been called to the heart of Mumbai city, the capital of India and one of the best city of the world. जहां जिनके हमको सब एक दूसरे को एक नई खुशी। आज का कार्यक्रम क्या है? आज का सही मायने में प्रेम का संदेश देने का कार्यक्रम। मुफ्ती साहब ने क्या कहा? जहां भी हो, जैसे भी हो, अरे तेरी जवाब है हिंदुस्तान हो। रियल मैसेज है पूरी आज बैठक का। अगर एक मैसेज है तो मुफ्ती साहब ने जो कहा, तू जहां भी हो, जैसा भी हो तेरे हिंदुस्तान, तेरी जवाब पर हिंदुस्तान हो। यह मैसेज है आज का, और यही संस्कृति है। आज क्या जरूरत है?
आज इस देश की जरूरत है। घनश्याम जी साहब, तरुण जी, केसी जैन साहब, जिग्नेश जी, जाफरी साहब, क्या जरूरत है आज देश को? देश को ऐसे मार्गदर्शकों की जरूरत है, ऐसे संतों की जरूरत है, देवेंद्र भैया जैसे लोगों की आज जरूरत है। इसलिए मैं आज घोषणा करता हूं, इस अरब सागर के समुद्र के तट पर यह घोषणा करता हूं, इस सुंदर ब्लू सी के इस हॉल पे घोषणा करता हूं कि आने वाला समय देवेंद्र भैया का समय है। आने वाला विचार देवेंद्र भैया का विचार है। आने वाली सीख देवेंद्र भैया की है। मुफ्ती साहब, अगर इस दुनिया में कोई शांति स्थापित कर सकता है, सर, आई डू नॉट नो द बेटर इंग्लिश, बट आई विल ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। देयर वाज अ पीस कॉन्फ्रेंस इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक शांति सम्मेलन हुआ पूरे विश्व का। दुनिया के राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्विट्जरलैंड टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड पीस। आफ्टर 3 days ऑफ कॉन्फ्रेंस, 3 दिन के बाद क्या हुआ? पता चला कि 1000 बकरे खा गए, 1000 मुर्गे खा गए। शांति नहीं हुई। विश्व शांति बकरे खाने से नहीं होने वाली, विश्व शांति मुर्गे खाने से नहीं होने वाली, विश्व शांति सम्मेलन से नहीं होगी। अगर विश्व शांति को स्थापित करना है, बिल्कुल बात ठीक लिखा है आपने, मैसेज है आज की बैठक का कि 2 संस्कृतियों का मिलन, पश्चिम की वेस्टर्न कल्चर का और भारतीय संस्कृति का मिलन का अगर कहीं है तो आज सभागृह में है, देवेंद्र भैया के चेयरमैनशिप में है, उनके मार्गदर्शन में। और आज अगर केसी जैन साहब, दुनिया में अगर शांति को स्टैब्लिश करना है तो स्विट्जरलैंड के होटल में नहीं होगी, या न्यूयॉर्क के किसी होटल में नहीं होगी, या ओबेरॉय में नहीं होगी। अगर शांति होगी तो भगवान महावीर के चरणों में होगी। अगर विश्व शांति का अगर मैसेज कहीं से लेना होगा तो जैन समाज ने 24 तीर्थंकर दिए ना, वो तीर्थंकरों की शिक्षा में से शांति, विश्व शांति स्थापित होगी। अगर शांति किसी के द्वारा होगी तो देवेंद्र भैया जैसे जो संत है उनके माध्यम से होगी। विवेकानंद से मानेंगे, आने वाला विवेकानंद है ये देवेंद्र भैया हमारा इस देश का। देवेंद्र भैया जी, मैं आपको नमन करता हूं। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जो आप मार्ग अपनाए हैं, मैं तो गृहस्थी आदमी हूं, पॉलिटिशियन हूं, दिन भर झूठ बोलता हूं। उन्हें झूठ नहीं बोलूं तो कोई बोलावी कौन? और शाम को सोते वक्त मिच्छामी दुक्कड़म 2 बार बोल देता हूं, मिच्छामी दुक्कड़म, मिच्छामी दुक्कड़म, और सब प्रशांत के पास भेज देता हूं। वास्तव में ये ऋषि मुनियों का देश, ये संतों का देश। अगर पूरी विश्व में कहीं भी संस्कृतियों को मिला सकता है, कहीं भी शांति स्थापित कर सकता है, दुनिया में एक मैसेज दे सकता है, तो ये अपना भारत देश दे सकता है। अगर कोई मैसेज दे सकता है, हमारे संत दे सकते हैं, देवेंद्र भैया जी दे सकते हैं। किसी को कोई जा रहा होगा, आ रहा होगा, उसको लगे 10 लोग स्टेज पे बैठे हैं, 50 और 200 लोग हॉल में बैठे हैं, क्या होगा? मित्रों, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वट वृक्ष देखा? वट वृक्ष जो बड़ा पेड़ होता है, जो सैकड़ों को छाया देता है, सैकड़ों पक्षी उसमें रहते हैं, ठंडक पहुंचाता है, वो किस में से पैदा होता है? एक छोटे से बीज से। एक छोटे मामूली बीज में वट वृक्ष छिपा हुआ है। इसलिए किसी को छोटे वक्त मत समझिए।
एक छोटे गुटली में आम का पेड़ छुपा हुआ है। जब बड़ा होते है एक गुटली में से तो पूरी ठंडाई देता है, ठंडक देता है, पर पूरी दुनिया को मिठास देता है। देवेंद्र भैया जी, ये आज का ये सम्मेलन, ये आज की जाफरी साहब ये मीटिंग, आप भी बहुत सुंदर बोले, मैं अप्रिशिएट करता हूं। और मैं तो आज तक एक बार भी किसी हीरो के पास बैठा नहीं, आज आपके साथ बैठा हूं तो थोड़ा करंट आ जाएगा, अपन भी हीरो बन जाएंगे कल से, और हीरो नहीं बने तो कम से कम विलेन तो बन ही जाएंगे, वो तो सारे गुण अपने में है। तो मित्रों, ये सभागृह में जो अपन एकत्रित हुए हैं, भैया जी, देवेंद्र जी, मैं नमन करना चाहता हूं आपकी विचारधारा को, आपकी दृढ़ता को, आपके विल पावर को, आपके काम करने की क्षमता को, आपके काम करने की शैली को। मैं आज आने वाला नहीं था, किसी जैन साहब का फोन आया, घनश्याम जी का फोन आया, डॉक्टर बख्शी का फोन आया, मैं नागपुर जाने वाला था, मेरे 4 बजे की फ्लाइट थी। मुझे फिर डॉक्टर साहब ने कहा, राजी आप आ रहे हो ना? फिर मैंने देखा, अरे विघ्नेश जी, मैंने कहा देवेंद्र भैया का कार्यक्रम है, इतने में तो व्हाट्सएप भी नहीं रखता। मैंने एक बार व्हाट्सएप शुरू कर दिया, डिप्रेशन में चला गया, नहीं पागल ही हो गया। 1200 मैसेज तेज पढ़ते जाओ, मोदी साहब पास वाला बोले राजपुरे जी, नहीं भाई। पर आज मैंने मेरे बेटे के उसमें आया, पापा आप जा रहे कि नहीं जा रहे? आका जी नगर सेवक है वो, मैं सनी जालसो काउंसिलर चेयरमैन। मैंने कहा, अरे वो देखो, मैं कहा हाँ जाना है। तो पापा टिकट तो है ना नागपुर जाने का? मैंने ट्रेवल एजेंट को बोला कैंसिल कर, बोले पैसे गए। मैं कोई बात नहीं, देवेंद्र भैया जी से ले लूंगा, आप चिंता मत कर। भाई मैं तो नेता हूं, फोकट में तो जाता नहीं कहीं, ने मेरे जेब से तो आज तक मैंने 1 रुपया कभी खर्च किया नहीं। या तो कैसी जैन साहब करते हैं या घनश्याम जी मोदी करते हैं, दोनों नहीं मिले तो तरुण जी को पकड़ लेता हूं, और ये तीनों नहीं मिले तो जिग्नेश को पकड़ लेता। तो ये जो सभागृह में आज का जो कार्यक्रम है मित्रों, इसका एक मैसेज है पूरी दुनिया को। मैसेज ये है कि हमने जो मुफ्ती साहब ने कहा और देवेंद्र भैया जी ने कहा, हम सबको साथ में रहना है। आज टीवी शुरू करो, दिल्ली में आग जल रही है, बंगाल में आग जल रही है, आसाम में आग जल रही है, जगह जगह तूफान पत्थरमारी हो रही है। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज क्यों किया? तो आप बस जलाओगे और पुलिस वाले क्या फोटो खींचेंगे? पुलिस का काम करेगी। आप संविधान की बात करते हो, संविधान ने आपको मोर्चा निकालने का अधिकार दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन राइट टू प्रोटेस्ट अंडर सेक्शन 19. You have right to protest, but what kind of protest? Peaceful protest. आपको पत्थर मारने का अधिकार नहीं दिया, आपको गाड़ियां जलाने का अधिकार नहीं दिया, आपको भरी हुई बस, स्कूल के बच्चों की बस को केरोसिन डाल के जलाने का अधिकार आपको नहीं दिया। आपको अधिकार है संविधान में, धरना देने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आप अपनी बात को रखने का अधिकार है। अगर इस देश में अमन और शांति चाहते हैं तो संविधान के रास्ते पे चलना होगा, और अगर संविधान के रास्ते पे चलेंगे और इन साधु संतों की बातें सुनेंगे, मुफ्ती साहब जैसे आदमी की बात सुने, क्या एक मैसेज दिया, तुम जहां भी हो, जैसा भी हो, तेरी जुबान पे हिंदुस्तान हो। आदरणीय देवेंद्र भैया जी ने मैसेज दिया, वर्ड पीस। सभी जितनी देश में विश्व की संस्कृति है, ऑल कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, सिमन सर, ऑल कल्चर ऑफ वर्ल्ड शुड बी यूनाइटेड, दे शुड बी एडजस्टिंग टू ईच अदर, whether it is maybe language, whether it may be caste, whether it may be creed, whether it is religion, whatever it may be, they should be understanding to each other. This is the message of the today's meeting. And you all the way came from the London, you both great men, you all the way came from to be show your presence. This is the message to the world.
मैं आप सबके बिहाफ में ये कहना चाहता हूं मित्रों और मेरे भाइयों और बहनों कि हम निकलते हुए एक शब्द लेके जाए, एक मैसेज लेके जाए देवेंद्र भैया की ओर से कि हम सब एक है, हमारी संस्कृति एक है, एक दूसरे के साथ राज्य खुशी में हंसते खेले और हमारी संस्कृति को बड़ा करें, हम गुणगान करें। मैं अभी केसी जैन साहब से बात कर रहा था, जैन समाज की। कभी आपने किसी ने सोचा जैन समाज की गहराइयों को? भगवान महावीर नमस्कार, मेरी 5 लाख की लॉटरी खुलवा देना, मैंने शायद बच्चे की शादी, लड़की नहीं मिल रही उसको लड़की मिलवा देना, भगवान मेरी दुकान चलवा देना, हो नाकड़ो भैरव मेरी दुकान का प्रॉफिट। भगवान इसके लिए क्या? जैन समाज की जो गहराइयां है, क्या क्या है जैन समाज में कि पानी गर्म करके पियो, वन शुड ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर। नाउ एवरी साइंटिस्ट, एवरी गवर्नमेंट ऑफ द एवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट दे सेइंग, ड्रिंक क्लीन वाटर, इफ इट इज नॉट क्लीन इज बॉइल इट एंड ड्रिंक द वाटर। जैन समाज ने कभी कहा हजारों साल पहले कि पानी गर्म करके पियो। आज क्लाइमेटिक चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सर, देयर इज अ डेजर्ट प्लेस इन अवर राजस्थान, दैट प्लेस कॉल्ड नागौर, देयर इज वन डिस्ट्रिक्ट प्लेस कॉल्ड नागौर, desert, pure desert. There is place called Sikar, there is place called Junjunu. These two places are the richest people of India, belong to these 2 districts, Sikar and Junjunu. तुरंत जी बराबर है ना? Of 2 districts, the richest people of India on one same place, that is desert. उस desert में ओले गिरे, there is snowfall in desert, climatic change. जैन समाज ने क्या कहा? किसी जैन संत को आपने हरियाली पे चढ़ते हुए देखा आज तक? क्यों? कि वो हरियाली की रक्षा करते, इन्वायरमेंट की रक्षा करते हैं। ये कब कहा जैन समाज ने? हजारों साल पहले। कौन मुकाबला कर सकता है जैन की थ्योरी का? अब आप शाम को 11-12 बजे चौपाटी पे जाके पास्ता और क्या पिज्जा, जिसने भी चौविहार किया इस जिंदगी में, जैन साहब, चिग्नेश जी और आप तो सब जानते हैं, मैं हजारों जैन समाज के मेरे पिता तुल्य वर्दों को जानता हूं, मुतलिया जी, जो आज तक जिन्होंने चौविहार किया उन्होंने डॉक्टर का मुंह नहीं देखा। जिन्होंने चौविहार किया उन्होंने डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, दवाखाने का नहीं देखा। अंत में हंसते। हमारे एक महेंद्र जी है मेरे पड़ोस में, छतरी वाले, मरीन ड्राइव पे रहते, जिंदगी में एक बार डॉक्टर के पास नहीं गए, एक बार डॉक्टर नहीं गए, क्योंकि वो चौविहार करते थे। साइंटिफिक है कि आफ्टर सनसेट यू शुड नॉट ईट, दैट इज द जैन थ्योरी ऑफ साइंटिफिक रिलीजन। क्या नहीं कहा? गर्म पानी पियो, चौविहार करो, क्लाइमेट की रक्षा करो। उस परंपरा को जिंदा रखने का कोई काम कर रहा है, उस परंपरा को जिंदा रखने को, जीवित रखने का कोई काम कर रहा है, उन शिक्षाओं तक कोई पहुंचाने का काम कर रहा है, तो हमारे देवेंद्र भैया जैसे संत कर रहे हैं। देवेंद्र भैया जी, हमको और आगे जाना है, और मंजिलें प्राप्त करनी है। कठिनाइयां आए, कठिनाइयों के पहाड़ आए, कठिनाइयों के तूफान आ जाए, मुझे पूरा विश्वास है जो आपने यात्रा शुरू की है घनश्याम जी, जो देवेंद्र भाई और तरुण जी जो यात्रा शुरू की है, वो यात्रा न तूफानों से रुकेगी न पहाड़ों से रुकेगी। जो भी तूफान या पहाड़ आएंगे, देवेंद्र भैया उन पहाड़ों और तूफानों को चीर करके समाज की सेवा के लिए आगे जाएंगे। आज का यह सुंदर कार्यक्रम, संस्कृति का मिलन का कार्यक्रम, भावनाओं को मिलाने का कार्यक्रम, भाईचारे का कार्यक्रम, एक स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम, दुनिया को एक मैसेज देने का कार्यक्रम, सभी समाजों को मैसेज देने का कार्यक्रम, सभी धर्मों को मैसेज देने का कार्यक्रम, दिल्ली की आग को मैसेज देने का कार्यक्रम,
अलीगढ़ मुस्लिम सिंडिकेट को आंख देने का कार्यक्रम, सभी को अगर कोई मैसेज देने का आज कार्यक्रम है तो आज देवेंद्र भैयानी जी ने किया है। जोरदार तालियों से इस गुरु देवेंद्र भैया जी के इस कार्यक्रम का अभिनंदन करते हैं। और आप सब मंच पर विशेष रूप से लंदन से आए सभी हमारे अतिथियों का भी, मुफ्ती साहब का भी अभिनंदन करते हैं। और मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबका शुक्रगुजार करते हुए इस सुंदर कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने जो भूमिका अदा की, आपने जो समय का भोग दिया, कोई धन का भोग देता है, कोई कुछ भोग देता है, आज आपने समय का दान दिया, इसके लिए मैं पूरी समाज की ओर से, संस्था की ओर से नतमस्तक होता हूं। आप सबको जय जिनेन्द्र, मिच्छामि दुक्कडम, भारत माता की धन्यवाद। थैंक यू पुरोहित जी, आपकी बातों से ये पता चला कि फाउंडेशन हमने आज रखा है पर ये बिल्डिंग बहुत ऊंची बनेगी। द फाउंडेशन इज सो डीप, सो वी आर श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी अ स्काईस्क्रैपर नाउ। थैंक यू so much. Now I request upon Swami Shri Devendra ji to have, like, you know, what is actual the gist of whole program, okay? Swami Shri Devendra bhai ji. राज्य की, हमारे परम सम्माननीय राज के पुरोहित जी की जो आपने जो बातें सुनी, लगता है कि निश्चित ही कुछ परिवर्तन का दौर है, कुछ समय का दौर है। मैं उनके लिए, उनकी बातों का सारांश इतना ही है कि हम सबके लिए, जो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, भली से संख्या में बहुत कम है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं संख्या में जितने कम है, मैं सब अपने आप में एक भारत बैठा हुआ है, सब अपने आप में भारत है। और चाहेगा, हर आदमी अगर चाहे ना तो दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। मैं, हमारे जाफरी साहब बैठे हैं, इनकी एक कविता है, इनकी एक कुछ चंद लाइनें हैं, वो आप, मैं इतना ही कहूंगा कि जाफरी साहब से, जो इनने एक एकता का, शांति का उस छोटी सी बातों के अंदर जो पूरा सार दे दिया है। मैं चाहूंगा कि जाफरी साहब आए और अपनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं 2 बार इनके घर पे मेरा जाना हुआ जाफरी साहब के, और 2 बार मैंने इनसे जिक्र किया कि वो कविता, उसको 12 करोड़ लोगों ने उस कविता को देखा है, वो उस कविता को 12 से ऊपर करोड़ लोगों ने, और हर किसी ने लाइक किया। मैं चाहूंगा कि एक वो अपनी बात रखें। धन्यवाद गुरुजी। असल में ये बात शुरू हुई थी, मैंने थोड़ा सा इसका एक पहाड़ बांधता हूँ कि ये शुरू, मैं बचपन में करीबन 12-13 साल का था, तो हम यहाँ आते थे हाजी अली, और बाजू में महालक्ष्मी का मंदिर था। तो मैंने नोटिस किया कि हाजी अली की दरगाह पे वो लिली के फूल होते थे, और महालक्ष्मी मंदिर में देखा गेंदे के फूल होते थे। वो बचपन में मुझे लगा, मैंने बोले यार ये फूल, मतलब इधर ये फूल है, उधर ये फूल है, और एक्सचेंज नहीं होगा। वो गेंदे का फूल आपको यहाँ नहीं दिखेगा और लिली का फूल आपको मंदिर में नहीं दिखेगा। तो कई साल बीत गए तो एक कुछ बात मैंने कहीं इंटरनेट पे देखी थी, फिर उसको मैंने थोड़ा एक्सपैंड किया कि ये सवाल करता था मेरा मन जब था मेरा बचपन, क्यों मज़ारों पे है सिर्फ लिली के फूल ही दिखते और मंदिरों के बाहर है सिर्फ गेंदे ही बिकते। और अब नफरतों का असर देखो, जानवरों का हो गया बंटवारा, गाय हो गई हिंदू और बकरा हुआ मुसलमान बेचारा। मिठाइयां और मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, मिठाइयां और मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ये पेड़, ये पत्तों और शाखों को भी टेंशन ने है मारा, न जाने कब परिंदों का भी हो जाए हिंदू मुस्लिम में बंटवारा। जिस तरह रंगों में भी हो रहा है भेदभाव कि लाल है हिंदू का और हरा है मुसलमान का समहाव, तो वो दिन दूर नहीं जब सारे के सारे हरी सब्जियों के गुच्छे मुसलमानों के घर जाएंगे और हिंदुओं के हिस्से में सिर्फ गाजर और टमाटर ही आएंगे। अब सवाल यह होता है कि तरबूज उर्फ कलिंगड़, इसका क्या होगा? ये तो बेचारा
अंदर से हिंदू और बाहर से मुसलमान ही रह जाएगा। तो ये जो थोड़ी मजाक में है लेकिन बहुत गहरी बात है, और देवेंद्र भाई जी ने कहा कि एक बार पढ़ दो, तो ये है। और अगर ये भावना हम लेके चलें, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक लाइन बनाते रहेंगे। रहो यार, प्यार से मोहब्बत से मिलके रहो। तुमको यहाँ जिस तरह से तुम्हारे परमात्मा को याद करना है तुम याद कर लो, जिसको क्या आप ऐसे याद कर लो। जो जोड़ने की बातें उसकी बात करो यार। बस यही कहता हूँ मैं, दिलों को जोड़ो, उस पर आप फोकस करो, उस पर तवज्जो दो, सारे प्रॉब्लम चले जाएंगे इस मुल्क के। जय हिंद, थैंक यू। बहुत ही सुंदर इन छोटी सी बातों में जो मैसेज दिया है, हकीकत में अपने आप में एक बहुत बड़ा, कई किताबें पढ़ लो, इन चंद लानों को कर लो। जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम अदक एक ऐसी नफरत की कई लोग दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूं कि जब जब तुम नफरत की दीवार खड़ी करोगे तब तक हम जैसे लोग ऐसी दीवारों को तोड़ते रहेंगे और इंसान और भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। मैं यही आज का इस कार्यक्रम के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। मैं आप सबसे एक छोटे मंच पर हमारे बैठे हैं सभी लोग, और एक छोटे से आयोजन के लिए आप सब पधारे। मैं सबसे पहले मिस्टर साइमन ओवेंस जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आई एम थैंक यू कि यहाँ पर आए मिस्टर अजय मारू जी, जिग्नेश हिरानी जी, आदरणीय केसी जैन साहब, और हमारे सबसे चहेते और सबसे लाडले मुंबई के श्री राज के पुरोहित जी, जाफरी साहब, और मुक्ति मंजूर जाई साहब, और हमारे तरुण जी काला साहब, और हमारे सबसे डायनामिक जिनको कहते हैं श्री घनश्याम मोदी जी, जो हमेशा एक समाज को और सब लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे आदरणीय घनश्याम मोदी साहब। और हमारे सामने श्री रमेश जी गजरा जी, जो हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा बहुत अच्छा कार्य हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं मैन भाई तुर्किया जी, जो किसी पैताज के मोहताज नहीं हैं। हमारे आचार्य राकेश जी, राकेश जैन जी, हमारे गोवा से पधारे हमारे श्याम चेतन जी, जो स्पेशली इसके लिए आए हैं, जोरदार तालियां बजा के स्वागत से करना चाहूँगा। और हमारे अशोक शास्त्री जी, जो इस प्रोग्राम के लिए पूरी भागदौड़, पूरी मेहनत करते रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे और भी जितने लोग, हमारी रुचिका सुराना जी, जो काफ़ी समाज सेविका हैं और काफ़ी लोगों को बाहर की देशों की यात्रा कराने में महारत हासिल है, ऐसी रुचिका सुराना जी, पूनम विनायका जी, और रवि जी, जिग्नेश हिरानी जी, और हमारे जिगर दोषी जी, और हमारे सबसे प्रकाश चोपड़ा जी, हमारे अरहंत मूवी के संतोष जी सबसे पीछे बैठे हैं, और सबसे शानदार, और चंद ही दिनों में मुलाकात हुई आपको बताऊं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे सबसे बातचीत करने वाले सतीश सुराना जी और हमारे सी डांगी जी जो आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पीछे बैठे हुए हैं हमारे एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जो हमेशा कभी भी मेरी राज्य कभी भी कुछ होता है तो सबसे आगे रह के काम करने में पूरी रात लगा देते हैं उन कामों के लिए। ऐसे सबसे पीछे बैठे हैं, सबसे पीछे दिख रहे हैं श्री राजेश श्रीवास्तव जी, उनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। और हमारे कुमार चटर्जी साहब, जो संगीत का एक बहुत बड़ा चलता फिरता विश्वविद्यालय के रूप में जो कार्य कर रहा है, वो चाहूंगा कि एक बार अपने स्थान पर वहीं खड़े हो जाएं। और हमारे सुदर्शन डांगी जी, जो हमेशा एक समाज सेवी के रूप में हमेशा अग्रणी रहते हैं। और अभी प्रशांत भाई का तो जवाब ही नहीं है, कहाँ है प्रशांत भाई? प्रशांत भाई वो है, देखो वहां पर, वहां, हाँ। और हमारे जितने भी
हमारे लोग आए हुए हैं, सबके लिए मैं यही बात कहूँगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर अपने जीवन में उतार लो तो निश्चित ही मैं कहता हूँ मंदिर, मैं उस समाज से आता हूँ जहाँ एक चींटी को मारना भी महापाप समझा जाता है। मैं उस धर्म से हूँ जहाँ सूर्यास्त होते ही जहाँ भोजनशाला बंद हो जाती है। मैं उस समाज से हूँ जहाँ पर रात्रि भोजन और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ पर निषेध होती हैं। मैं उस समाज से हूँ। और मैं, जैसे राज जी ने कहा है कि शांति के लिए भगवान महावीर का ही शरण लेना पड़ेगी, तो मैं आपसे कहता हूँ भगवान महावीर ने एक छोटी छोटी बातें कही हैं, अगर अपने जीवन में अगर कोई इंसान उतार लेता है तो निश्चित मानिए वो अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए और सफलता की सीढ़ियों को पहुँचाने के लिए बहुत काफ़ी है। अगर आप रास्ते से गुजरते हो, रास्ते से जा रहे हो, तो इतना ही करें। अगर आपको एम्बुलेंस दिख जाती है, अगर कोई रास्ते में कोई ऐसा दिख जाता है, एम्बुलेंस जाते दिख रही है, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ इतना ही करें कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे खुदा, अगर ये जा रहा है, बस मेरी प्रार्थना है कि इसको ठीक कर दे। वो ठीक हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी ये दुआ निश्चित उसका जीवन परिवर्तन कर सकती है। ये छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने जीवन को जरूर उतारें। आप कभी बड़े बड़े दान नहीं कर पाते हो, बड़े बड़े काम नहीं कर पाते हो, पर ऐसा काम करें, सुबह सुबह जब घर से निकलें तो ऐसे गायों के लिए ऐसे कुछ परोपकार के छोटे छोटे काम कर दें। ये जीवन है, बहुत कब बदल जाए, कोई परिवर्तन हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हमें वर्षों तपस्या करने पड़े, वर्षों कुछ काम करने पड़े। यही छोटे छोटे कार्य होते हैं जो जीवन में बहुत बड़ी अपनी सफलता का राज बन सकते हैं। और मैं इस मंच का पूरा समय, पूरा टाइम जो इनने भाग दौड़ करी, करीब 1 महीने से इस कार्यक्रम के लिए नहीं, अदर कार्यक्रम के लिए जो भाग दौड़ करती रही, पूरे में एक समाज की एक जानी मानी अच्छी समाज सेविका भी है और बहुत अच्छा कार्य भी करती हैं, सोशल इवेंटों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और अपने लिए बहुत अच्छा यहाँ पर जो आयोजन किया है। मैं चाहूँगा हमारी एक प्रीति जैन शाह, जो इनने बहुत अच्छा संचालन किया, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हाँ, और मैं चाहूँगा कि आप सब यहाँ पर आए इतने कम समय में। हमारे राज्य के बेटे जो अभी वर्तमान में नवा सेवक हैं वो भी आए हैं और उनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। ये राजनीति का वो भविष्य है, ये वो भविष्य है राजनीति का जो आगे जाके अनेकों आज की युवा पीढ़ी की प्रेरणा के रूप में, आदर्श के रूप में एक स्थापित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आकाश जी, आज एक छोटा सा कार्य है, ये छोटा सा राजनीति का एक पड़ाव शुरू हुआ है, आगे जाके मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी, आप मंच पर पधारें, मंच पर पधारें। मेरी आपके लिए आकाश जी इतनी शुभकामना है कि आप जो भी पद पर हैं, एक छोटी सी भी शुरुआत है राजनीति की, लेकिन ये राजनीति का चढ़ाव पहला पड़ाव है, आगे जाके बहुत बड़ा पड़ाव तय करना है आपके लिए। और मेरी तहे दिल से शुभकामना है कि ये तो कुछ नहीं है, अभी तो दिल्ली का दरबार भी आपके लिए बुलावा आएगा। मेरी अनेकों शुभकामनाएं इस बात के लिए हैं। और तमाम मेरे प्रिय आत्माएं जितने आए हैं, जितने लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, जितने भव्य आत्माएं बैठे हुए हैं, मैं सभी के लिए तहे दिल से एक बार पुनः सबका आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। हमारे सबके लिए जो यहाँ पधारे हैं और समय समय पे ऐसे छोटे छोटे कार्य होते रहें, आप लोग सहभागिता आनंद लें। और यही है, सभी को मेरा अंतिम जय जिनेंद्र। Thank you so much. We just have a gentle request of Shyamji. He would like to have few words for Guruji, and after this we all would have invite you for joining for dinner. Okay? Hello. जय जिनेंद्र।
और हमारी लीलाबेन गजरा और हमारी मिसेस तुरकिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी प्रीति शाह का एक बार स्वागत करें और हमारे राजनीति के जाने माने चेहरे आकाश पुरोहित जी का भी एक स्वागत सत्कार करें। पधारें। आप बोलो। अनवर जी आगे आइए, स्वागत करेंगे एडवोकेट साहब।